come to question number 3. So question number 3 is represent the following numbers on a number line. Beta, in this question you are to represent these all integers on a number line. So for this, first of all you will draw a number line and you will write all integers according to your requirement. How beta? Now see here, जो हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 8 है और जो हाईएस्ट नेगेटिव नंबर क्या है वो है -10. तो आप नंबर लाइन पर 8 पॉजिटिव नंबर राइट कर लेंगे और 10 नेगेटिव नंबर्स राइट कर लेंगे. एंड लर्न वन थिंग मोर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन. जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना वो नंबर लाइन के राइट साइड होते हैं and negative integers lies on the left side of a number line. Okay, and these all integers you will write at a proper gap, at 1 centimeter gap. आप एक सेंटीमीटर के गैप पे इनको राइट करेंगे. ओके, now how you represent these all given integers? First part is +5. तो where is +5? This is +5 ना. तो here draw arrow sign and write here this is representing +5. Next is -10. So where is -10? This one is -10 na. So here arrow sign put and in bracket you will write -10. Now C part is +8. So where is +8? Here is +8. So you will put arrow sign here and you will write +8. Now next is -1. So where is -1? This one is -1 na. So you will put arrow sign here and in bracket you will write this is -1. Now last is -6. So where is -6? Here -6. So -6 arrow sign put here and in bracket you will write -6. So in this way you will represent these all integers on a number line. Okay beta, integer contain all positive numbers and all negative numbers. Positive numbers are greater than 0 and negative numbers are less than 0. Okay beta, or when you draw a number line 0 right in center. Okay beta. Now come to question number 4. Question number 4 is adjacent figure is a vertical number line. This vertical number line is given in your book representing integers. और ये क्या represent कर रही है? Integer represent कर रही है. Observe it and locate the following points. अब आपको इसको observe करना है और आपको points बताने हैं. So part A is if point D is +8. अगर जो D point है ना here, see here, this D point is +8. D का मतलब क्या है? +8 को represent कर रहा है ये. Then which point is -8? तो कौन सा point -8 को represent करेगा? So see here बेटा, in question number 3 I told you on a number line positive integers lies on right side and negative integers lies on left side of a number line ना. Now what is given here कि जो ये D है ना, ये जो आपका D point है ये प्लस को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर. तो दिस साइड अप साइड क्या है? अप साइड पॉजिटिव नंबर्स हैं. देन तो इट कम्स ना +8. दिस इज 0. देन 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अप साइड these all points representing positive numbers. अगर अप साइड पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट कर रही है तो डाउन साइड ऑल नंबर्स रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स. तो ये नेगेटिव इंटीजर्स डिनोट करेंगे. सो आपको बताना है कि विच पॉइंट डिनोट्स -8. तो हेयर इज 0. देन दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. तो
which point tells you -8f. So what will be the answer? F. Okay. This number line also you will draw in your fair notebook, and these statements also you will write, then you will write answer. Okay. Now come to question number B. Is point G a negative integer or a positive integers? So check where is G. G कहाँ है? डाउनवर्ड साइड. तो अभी बताया था जो डाउनवर्ड साइड जितने भी नंबर्स हैं इट रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर्स. सो G इज अ नेगेटिव इंटीजर. तो व्हाट वी राइट हियर? नेगेटिव इंटीजर. ओके. नाउ कम टू C पार्ट. राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E. अब आपको B और E के लिए इंटीजर राइट करने हैं. तो वेयर इज B? B कहाँ है? अप साइड ऑफ दिस लाइन. इस लाइन की ऊपर वाली साइड है, तो ऊपर वाली साइड दीज ऑल डिनोट्स पॉजिटिव नंबर. तो नाउ यू काउंट हियर 0, देन 1 2 3 4. तो B पॉइंट tells you या indicate, you can write B indicate +4. okay. And E, where is E beta? E is here. So again you will count the numbers downward. These all are negatives number. So -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, and this is -10. So E, what you write here beta? Write answer in your notebook. E indicate -10. okay. Now come to part D. Which point marked on this number line has the least value? अब आपसे पूछा है कि कौन सा जो पॉइंट है वो उसकी वैल्यू सबसे कम है. तो किसकी वैल्यू सबसे कम होगी? सी हियर बेटा, व्हाट आई टोल्ड कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर मोर देन ग्रेटर देन 0. तो इन सब की तो वैल्यू क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, है ना. एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन 0. और सारे नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? 0 से लेस होते हैं. बट सबसे कम वैल्यू किसकी है? तो सी हियर, सी जो 0 से जितनी भी दूर होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी? उतनी कम होगी. देखो 0 से स्मॉल क्या है? -1. -1 से स्मॉल क्या है? -2. देन -2 से स्मॉल -3. देन -3 से स्मॉल -4. देन -4 से स्मॉल -5. -5 से स्मॉल क्या हो जाएगा? -6. तो ऐसे ऐसे सबसे स्मॉल वैल्यू किसकी हो जाएगी? -10 इज द लीस्ट नंबर. ओके बेटा, लर्न वन थिंग. जो नेगेटिव इंटीजर होता है ना, जो जितना बड़ा होगा ना उसकी वैल्यू क्या होगी? उतनी कम होगी. 0 से जो जितना दूर जाएगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी. वो दिखने में तो बिग होगा, जैसे 10 दिखने में तो बिग है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी? उतनी लेस होगी. ओके. तो आपसे पूछा था कि कौन सा पॉइंट सबसे लीस्ट वैल्यू रखता है. तो कौन सा पॉइंट सबसे लीस्ट वैल्यू रखता है? ई. तो व्हाट विल बी द आंसर? ई. ओके बेटा, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. अब आपको क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में आपको सभी पॉइंट्स राइट करने हैं. डिक्रीजिंग मीन्स आपको सबसे पहले बिग लिखनी है वैल्यू, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल, सबसे स्मॉल. इट मीन्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना है. ओके बेटा. सो what I told you, all positive integers are greater than negative integers. सभी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं. ओके बेटा. तो सबसे बिग किसकी वैल्यू हो गई? डी की. देन उससे स्मॉल वैल्यू किसकी हो गई? सी की. देन उससे स्मॉल वैल्यू बी की. देन ए, देन एच, then G, then F and last is E. सबसे बिग
वैल्यू किसकी है, डी पॉइंट की, क्योंकि ये +8 को डिनोट कर रहा है। देन सी की, उससे स्मॉल बी, उससे स्मॉल ए, उससे स्मॉल एच, विद देन जी, देन एफ एंड देन ई। ओके बेटा, so I hope you got these question number 3 and 4. So both questions also you will do in your fair notebook in neat and clean handwriting. Bye beta.